बहुत जल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या जल आप रहा इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती I'm Sakshi Rai and you're watching Gaon Sabha channel. Hathras from Uttar Pradesh. This place has attracted all the eyes of the country towards itself. Reason being the shameless incident that took place here, where a Dalit woman of this village became a victim to the monsters there. The brutality was such that her tongue was cut, so that she couldn't speak the truth, and of course only if she lives. But eventually she succumbed to her injuries. Whole country is once again filled with anger. But yes, even amidst all this, Uttar Pradesh police officers in humane face is revealing once again amongst the public. Late night on Tuesday, when the victim's body was taken back to the village, amongst all the opposition by the family members, police decided to go against everyone and eventually ended up performing the funeral rites all by themselves. On one side, the daughter of the country was burning in flames, and on the other hand, the police officers could be seen giggling over there. The police also ensured to maintain the secrecy of what they did, which shows how insensitive were they to handle such a heinous crime. People out there kept on questioning them. But the only answer they gave was that they weren't allowed to ask anything. Hathras from Uttar Pradesh has become the center of attraction for everyone. The shameless incident that took place here has shaken up the government and the society at large. The incident took place on September 14, but became the center of attraction of the country when the gang rape victim eventually succumbed to her injuries and died. The police of the Yogi government that promised justice to all couldn't do anything. Instead, they chose to settle down the matter by hushing it up. After the victim's death, Nirbhaya's family was crying and pleading for justice, but the UP police didn't even allow them to cremate their own daughter. They didn't even allow to get her inside her house for the one last time. It was just this much that her family asked for. The Dalit woman who became the victim to the gang rape died on Tuesday at Safdarjung Hospital in Delhi. Late night, amidst police protection, the dead body of the victim was taken back to the village at Hathras. The police reached there at midnight, and yet the crowd was too large to be controlled, and a lot of opposition was faced by the police. The guardians of the victim and the people of the village pleaded to give them the body of the girl, but the police didn't listen to any one of them and didn't allow them to even come near their daughter's body. Amidst high police security, the police decided to themselves forcefully cremate the gang rape victim turned dead body of the girl. This didn't stop here. The police didn't even allow any media person to come near them. And after this, once again the UP police is held questionable. After the death of the girl, the mother wasn't even allowed to see her face for the last time. मुझे आई डोंट नो। मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या जल आप रहा इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? जल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, ये आपकी? क्या जल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी? जल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? सर ये क्या जल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात बात हुई है? है नहीं आपकी? ये नहीं क्या बात चल नहीं रहा है? सही है। सब लोग जो खड़े हैं, ड्यूटी सर। है मैडम वही बोलूंगा नहीं, मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या जल रहा ड्यूटी है? आपकी बात डीएम साहब से हो सर चुकी बॉडी है। क्या डीएम साहब से आप बात हो लोगों चुकी है ने जला आपकी। दी है? डीएम मैं साहब से बात हो सिर्फ चुकी है। डीएम साहब नहीं है, नो डीएम साहब यहाँ नहीं बात है, आपकी सर। हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम
सीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर ये क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। संजीव कुमार मैं साहब। क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। जी। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर, बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का? मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों सर को। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ दिमाग नहीं हमारे पास। वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो I told you, right? या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? The police burnt her on their own. Her mother could be seen pleading and crying. She wanted to just let her daughter come in her house for one last time. She wanted to color her hands with haldi and bid her last farewell with that. क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। Now the UP police is saying that they have got all the rapists. Many politicians of political parties, including Congress, are holding protests against the government throughout the country. According to CM Yogi Adityanath's tweet, Prime Minister Narendra Modi has asked him on call to look into the matter very seriously and provide the justice as soon as possible. At the same time, the opposition is trying to center the government. Congress President Sonia Gandhi has declared it as a shameless matter. देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में
कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं लेकिन सारी चूंकि अब गलतियां हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसका विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हठ धर्मता करके नहीं साहब, मैं तो यही करूंगा सर। मैं यही करूंगा। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल सर हम देखो भैया सुनो, एक मिनट भैया, जो बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। भैया एक मिनट समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये सबकी आपकी भी है, सबकी ठीक है। बेटी यार। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप अरे अपने हमारा तरफ से कोई बना रहे हैं? पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। The victim daughter of the Dalit man has slept on her deathbed already. And after her death, there is even more that the Yogi government wants to show us. Police has forcibly taken back the basic human rights of the family. The society hurt them first, and now it's the government that is completing the need. BJP is said to be the party of Hindus, yet the Hindu Dalit family was not even allowed to cremate their own daughter with the Hindu customs and traditions. The mother, who pleaded for the body of her own daughter, was advised to change the Hindu customs and traditions just because they didn't want to give the body to the family. Yogi government ended the case with absolute dictatorship. They said to have given orders from Lucknow that couldn't be actually seen. The dead body was cremated without the family members, and yet another daughter turned into ashes within seconds. Sakshi Rai, GauSabha.in.